delegation, ministers, esteemed guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It is a profound pleasure to welcome Your Excellency and the distinguished members of the Indian delegation to the Maldives. My wife and I still carry fond memories of the warmth and generosity with which you received us during our visit to India last October. Tonight, we are delighted to reciprocate that friendship and goodwill in the spirit of the close ties between our two nations. Excellency, first of all, let me convey my heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India today. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. Wishing Your Excellency continued success as you lead India towards greater heights. Excellency, this year marks 60 years of diplomatic relations between the Maldives and India, a milestone that reflects not only our shared history, but also the depth and resilience of our partnership. Yet, the bond between our peoples predates diplomatic formalities. For centuries, the Indian Ocean has been a witness to our shared journey. As traders, travelers, and neighbors, we exchanged goods, stories, and ideas across these waters for centuries. It is the same ocean that unites us today, with ties that no tide can break. Excellency, India has long stood as the Maldives' closest and most trusted partner. Our collaboration spans a wide range of areas, from security and trade to healthcare, education, and beyond, touching the everyday lives of our citizens. Every day, hundreds of Maldivians travel to India for medical care, education, and business, just as we warmly welcome members of the Indian diaspora who continue to contribute meaningfully to our economy and society. My government's vision is clear: to build a resilient, inclusive, and forward-looking economy that is vibrant, to empower our youth to thrive in the digital age, and to ensure lasting peace and security in our shared region. In pursuing these goals, India's partnership remains invaluable. This evening, I reaffirm the Maldives' steadfast commitment to preserve and strengthen the special bond between our two nations and our people. Excellency, the government and people of Maldives deeply value the friendship of India and are sincerely grateful for the timely assistance your country has extended to us in moments of need. As neighbors and partners, let us continue to explore new avenues of cooperation that promotes prosperity, upholds shared values, and fulfills the aspirations of our people. On behalf of the government and the people of Maldives, I extend my heartfelt appreciation to you and your government for your enduring friendship and reliable support. May the Maldives-India partnership continue to flourish in the years ahead. And may the people of India be blessed with continued peace, happiness, and prosperity. Thank you. Your Excellency, राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले सभी भारतवासियों की ओर से मैं राष्ट्रपति जी और मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता के 60 वर्षों की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में
आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। आज जारी किया गया डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों की पारंपरिक नौकाएं हैं, दर्शाता है कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। फ्रेंड्स, भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध कराने की बात हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। फॉर अस इट इज ऑलवेज फ्रेंडशिप फर्स्ट। फ्रेंड, पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के दौरान हमने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था। अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। भारत के सहयोग से बनाए गए 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब मालदीव में कई परिवारों के लिए नई शुरुआत बनेंगे, नया आशियाना होंगे। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अडू रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रीडेवलप किए जा रहे हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये पूरा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और आर्थिक केंद्र बनकर उभरेगा। जल्द ही फेरी सिस्टम की शुरुआत से अलग अलग आइलैंड्स के बीच आवागमन और आसान होगा। उसके बाद आइलैंड्स के बीच दूरी जीपीएस से नहीं, सिर्फ फेरी टाइम से मापी जाएगी। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। यह मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल ली जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी आर्थिक साझेदारी को गति देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। अब हमारा लक्ष्य है फ्रॉम पेपर वर्क टू प्रॉस्पेरिटी। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रुपये और रुपया में सीधे व्यापार कर सकेंगे। जिस रफ्तार से यूपीआई को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है,
इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग आपसी विश्वास का परिचायक है। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है, यह ट्रस्ट की कंक्रीट इमारत है, हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। हमारी साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में साथ मिलकर हम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। हमने तय किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। इस क्षेत्र में भारत अपना अनुभव मालदीव के साथ साझा करेगा। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपको और मालदीव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा।